सो हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यू बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स. In previous video, we discussed about the quantum numbers. So what are quantum numbers? That is N, L, M and S. That is principal, azimuthal, magnetic and spin quantum number. So what information we get from quantum numbers? So it gives complete address of all electron present in an atom. Okay. Address of electron means its location, that is its position and the energy of the electron. Means the electron is present in which shell, which subshell, its orientation and spin of the electron. Let us discuss some examples. So first example is how many orbitals and electron associate with the N. So here what is N? So here N is a principal quantum number. N is principal quantum number. So principal quantum number means that is the principal energy level or shell or orbit. So N is equal to 4. That means this is the fourth energy level. And we know that how to calculate the maximum number of electron present in a shell. So maximum number of electron present in a shell is calculated by the formula 2n square. So put the value of n here. So 2 into 4 square, which comes 32. So how many electrons are present in the fourth energy level? That is 32 electrons. Now how many orbitals are there? So for orbitals the formula is n square. So 4 square, that's why 16 orbital. So B is the correct answer, that is 16 orbital and 32 electron. Now second question, again similar to these questions. How many electrons in an atom have the following quantum numbers? That is n is equal to 4 and m is equal to minus half. Sorry, s is equal to minus half. So here the again principal quantum number is 4. So that we know that how many electron associated with, calculated by the formula 2n square, that is 2 into 4 square, which is 32 electrons. So A is the correct answer. So in this way we can solve the questions based on the quantum number. So let us discuss some more examples. Now let us discuss another example based on these quantum numbers. So here the question is an electron in and one of the 3D orbital. What are the possible value of N, L and M for this electron? That is value of principal, azimuthal and magnetic quantum number. Okay. So the electron present in 3D orbital. So we know that this 3 means that is principal quantum number. So N is equal to 3. So what D? So this D is a subshell. So we know that the azimuthal quantum number gives information about subshell and the value of L are 0, 1, 2 for S, P, D and so on subshell. So here what is the value of D? So D value of D is 2. What is the value of D? D is 2. That's why N is equal to 3, L is equal to 2. So आंसर में हमें कहीं पे दिया है कि 2. यस. सो आई थिंक 2 एक ही जगह पे आए है, L की वैल्यू 2 एक ही जगह पे आई है और यहाँ पे ये 3 वैल्यू आई है. तो ये तो तीसरा आंसर हो सकता है, पर फिर भी अभी हम श्योर नहीं है. हमें तीसरा जो है वो चेक करना है. तो अभी देखना है हमें m की वैल्यू निकालनी है. तो m की वैल्यू कैसे निकालते हैं? m इज इक्वल टू 2l प्लस 1. दैट मीन्स l की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2. सो l की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट अप करो. 2 into 2 plus 1, which is equal to 5. That means there are 5 value of m. What are the 5 value? That 5 values are minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. That means there are 5 d orbitals. Okay. And for that d orbitals the value are minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. Okay. So the C is the correct answer. Now let us discuss another example. Now next example is what are the possible value of N, L, M, that is principal, azimuthal and magnetic quantum number for an electron orbital 4f. Which orbital? 4f orbital. मतलब यहाँ पे जो 4 की वैल्यू दिख रही है हमें, so this 4 is a principal quantum number. Principal quantum number. Okay. So the value of principal quantum number, that is n is equal to 4. तो n is equal to 4, सभी इसमें n is equal to 4 दिया है, तो इससे हमें कोई क्लू नहीं मिलने वाला.
तो हमें आगे जाना है। ये यफ जो दिख रहा है हमें, दिस यफ इज अ सबशेल। सबशेल, तो सबशेल के बारे में हमें कौन बताता है? दैट इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। और सबशेल के बारे में हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज पता है। L is equal to 0, 1, 2, 3 for S, P, D and F subshell. So here which subshell is there? F subshell. So what is the value of F here? That is 3. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कहाँ पे है? तो 3 इस जगह पे है। That is L is equal to 3. Okay. So now when L is equal to 3, what is the value of M? So how can we calculate the value of M? M is equal to 2L plus 1. What is the value of L? L is 3. So that's why 2 into 3 plus 1, which is equal to 7. So when L is equal to 3, M has 7 values. And what are the 7 values? That are minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2 and plus 3. These are the possible values, 7 values. We know that there are 7 F orbitals. Okay. And here are the values of that 7 F orbitals, right? So B is the correct answer. आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे, आपको एक सेट दिया, करेक्ट सेट आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन इज व्हिच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट। आपके पास यहाँ पे A B C D 4 सेट दिए हैं, इसमें से आपको करेक्ट सेट आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले A में देखेंगे हम, यहाँ पे N की वैल्यू 4 दी है और L की वैल्यू 5 दी है। हमें पता है जो L की वैल्यू होती है वो हमेशा N से कम रहेगी, 1 से तो भी N से कम रहेगी। तो यहाँ पे ये 5 दी है, इसका मतलब ये जो सेट है ये करेक्ट नहीं है। दूसरे सेट की अगर हम बात करते हैं B की, दूसरे में N की वैल्यू 3 हो सकती है क्योंकि थर्ड एनर्जी लेवल रहती है, और जब N की लेवल 3 रहती है तो L की 2 मतलब ये कम है तो L की वैल्यू भी रह सकती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जब L की वैल्यू 2 रहती है तो M की वैल्यू क्या रहेगी? तो फॉर्मूला इज M इज इक्वल टू 2L प्लस 1। तो L की वैल्यू 2 यहाँ पे डाल दो, दैट इज 2 into 2 plus 1, मतलब M की 5 वैल्यू रहेगी। तो M की 5 वैल्यू कौन सी रहेगी? तो वो रहेगी -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो यहाँ पे +3 दिया है तो ये 5 वैल्यू में नहीं आता, इसीलिए ये जो वैल्यू है ये रॉन्ग है। तीसरे सेट की अगर हम बात करते हैं तो N की वैल्यू 2 दी है, मतलब सेकंड एनर्जी लेवल है, लेकिन N और N की वैल्यू कभी सिमिलर नहीं रहती। L की वैल्यू हमेशा कम रहती है, हमने देखा था L इज इक्वल टू 0 देन 1 N माइनस 1, मतलब हमेशा L की वैल्यू N से 1 से कम ही रहेगी। ये जो वैल्यू है इक्वल दी है, इसलिए ये सेट भी रॉन्ग है। अभी हम चौथा सेट देखते हैं D। यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी लेवल N इज इक्वल टू 1 हो सकती है, तो वहां पे दिए L की वैल्यू S, दैट इज 0, मतलब S सबशेल हो सकता है। S सबशेल में S ऑर्बिटल भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जब 0 रहता है तो कौन सा सबशेल और कौन सा ऑर्बिटल रहता है, तो S सबशेल या फिर S ऑर्बिटल रहता है, और ये वैल्यू तो +12 या फिर -12 रह सकती है। सो D इज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर। ओके, अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमें 4 सेट दिए हैं, तो इसमें से भी हमें करेक्ट सेट आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला सेट अगर हम देखते हैं A, तो यहाँ पे जो N की वैल्यू है वो 2 दी है, तो सेकंड एनर्जी लेवल हो सकता है। L की वैल्यू 0 दी है, वो भी हो सकता है। ओके, लेकिन जब L की वैल्यू 0 रहती है तो M की भी एक ही वैल्यू रहती है, दैट इज 0। ओके, वो एक नहीं रहेगी। और यहाँ पे भी स्पिन क्या दिया है? +1 दिया है। स्पिन हमेशा या तो +12 रहता है या फिर -12 रहता है, तो ये स्पिन भी गलत दिया है, तो पहला वाला सेट गलत है। दूसरे सेट में हम देखते हैं वही है, ये तो तीनों हो सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन फिर से क्या दिया है यहाँ पे, जो स्पिन है वो +12 दिया है, तो स्पिन +12 या फिर -12 रहता है, +1 कभी नहीं रहता, तो दूसरा सेट भी क्या है? गलत है। उसके बाद में तीसरा सेट देखते हैं। तीसरे सेट में N की वैल्यू 2 दी है, मतलब सेकंड एनर्जी लेवल, तब L की वैल्यू क्या है? 0 हो सकती है। जब L की वैल्यू रहती 0 तब M की एक ही वैल्यू रहती है, वो रहती है 0, मतलब ये दोनों करेक्ट है। उसका स्पिन भी +12 है, तो
दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ पे कि ये जो सेट है क्वांटम नंबर का ये करेक्ट है। फिर से यहाँ पे चौथे सेट में देखते हैं, जब l की वैल्यू 0 रहती है तब यहाँ पे 1 दी है, जब l की वैल्यू 0 रहती है तो m की भी 0 ही रहती है, उसकी एक ही वैल्यू रहती है। इस तरह से C जो है यहाँ पे करेक्ट सेट है। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज गिव द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। हमें पता है सोडियम का सिंबल Na, एटॉमिक नंबर 11, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 then 2p6 and 3s1। so this is 11th इलेक्ट्रॉन। इस 11th इलेक्ट्रॉन का हमें क्या निकालना है, सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले तो हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n, l, m एंड s, ये चारों वैल्यू हमें इसकी पता करनी। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये जो 3 है 3s, दैट 3 मींस दिस इज अ थर्ड एनर्जी लेवल। सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी, n की वैल्यू रहेगी 3, पता है। फिर हम l की वैल्यू देखते हैं, हमें पता है ये कौन सा सबशेल है, यस सबशेल। तो हमें पता है L इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन फॉर S, P, D एंड सो ऑन। तो जब यहाँ पे यस लिखा है मतलब यस सबशेल है, तब यहाँ पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, L की 0 होनी चाहिए। उसके बाद में आते हैं उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, M की वैल्यू। हमें पता है जब L की वैल्यू 0 रहती है तो M की एक ही वैल्यू रहती है। M की वैल्यू कैसे रेंज करते हैं, M इज इक्वल टू -L 0 टू प्लस L। तो यहाँ पे L की वैल्यू 0 है, अगर L की वैल्यू हमने यहाँ पे 0 डाली तो M इज इक्वल टू 0, M की भी वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी। M की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0। और उसका स्पिन, अभी देखो यहाँ पे s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन रहे तो उसका स्पिन कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा। ओके, तो s की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे +12। So this is the correct set of quantum number for the 11th electron of sodium। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के जो किसी भी एटम हो उसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहते हैं, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो है मतलब उसका लोकेशन, उसका साइज या फिर साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, देन ओरिएंटेशन, ये सभी हम पता कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो थैंक यू।